Okay, so Deepak, you are going for NMDC material management, right? Yes, sir. Okay, so Deepak, I want to hear very brief introduction before going for the snap of material management. So, my name is Deepak Kumar. I belong to Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar, Uttar Pradesh. My father is a government servant and my mother is a homemaker. We are four brothers, including me. I did my graduation in BTech from Rajki Indian College, Bijnor, Uttar Pradesh in 2019. And since then, I was preparing for GATE. I believe that there are certain strengths and weaknesses in my personality. I think that I'm a hardworking person. I can work a lot of efforts, and if I talk about my weaknesses, then I think sometimes I'm very workaholic. Uh, uh, I trust somebody very easily. Okay, Deepak, why did you apply for material management post? Sir, I think that since my graduation days, I have bent of creativity. So basically, pondering into and manipulating the concept of ideas, I believe that I have certain management type of skills, which has proven for my academic background also. So I think as NMDC is a very prestigious organization, so I think I am pretty much very interested in the job profile and ready for it. Can you tell me the difference between material management and human resource management? So, if I talk about material management, then it mainly deals with the uh, management of raw materials, work in progress, inventory, and finished goods. But if I talk about human resource management, it is something like a broader concept. Human resource includes various other factors like the various activities controlling and like education terms and some other factors also. Okay, can you tell me the kind of inventories normally, types of inventories? Okay, so if I if we see, there are broadly three types of inventory. First is raw materials, second is work in progress inventory, and thirdly the finished goods. Sometimes there is also a fourth one that is merchandise. Okay, which inventory leads to the maximum losses? Which type of inventory out of all these is most unwanted? It should not be there. Unwanted. I think if we see the merchandise inventory, I think this is the least wanted type of inventory that is needed in any organization. What do you mean by merchandise inventory? Sir, these are the type of inventories in which the companies buy the products from the buyer. It's like resale thing. Companies buys those things which are uh, Acha, can you tell me what is the reorder point, Deepak, reorder point. or Sorry, lead sir, I time? don't. Lead time. No, sir. Sorry, What sir, is I what is your don't know. engineering background? Sir, I have graduated in electrical engineering. Okay, so can you tell me something about just in time? Yes, sir. Sir, just in time is an inventory management technique in which in which the goods are received from the supplier only when they are needed, only when as they are needed.
So what are advantage and disadvantage of that? sir, basically, if we see the advantages, uh, there is only the inventory which is needed is only at hand, and which are not needed. So basically, is save the inventory. And if we look at the disadvantages of this technique, sir, suppose if there is a spike in demand, there is demand spike, then the company will not be able to fulfill the demand of the customers, keeping the customers unsatisfied, and thus mm, they can uh, they can lag behind in the competitive environment. Okay, can you tell me, Deepak, which company introduced the just-in-time concept and used it extensively? Yes, sir. Um, the just in time was introduced something in 1960s and 70s in Japan. And if we talk about the Toyota Motors, mainly contributed to its whole broader concept. Do you know what is material requirement planning? Yes, sir. Uh, Material requirement planning is also a management inventory management technique, which is sale forecast dependent. Okay. Sir, according to it, the manufacturer must have accurate reading of the sales, so that accurate planning of inventory can be done. Mm. And he must communicate these inventory needs with the supplier in a very timely manner. Okay, as you said, sales forecasting. Can you tell me how sale Yes, sir. forecasting is different from demand forecasting? Sir, sale forecasting is something after when the products are sold out. Like it's like the mm, Then why it is called forecasting? ah, sir, forecasting, because you have to if you are going to plan out something, मतलब सर फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेल्स, क्या सेल्स हो सकते हैं सेल्स वेरियस फोरकास्टिंग फैक्टर्स तो को वो हुआ ना लेके. कि सेल्स कितना होगा. यस सर. That is forecasting of the sale. And what is demand forecasting? डिमांड इज समथिंग जो सर कस्टमर्स को क्या डिमांड रहेगा आने वाले समय में. तो सेल फोरकास्टिंग में और इसमें क्या डिफरेंस है? The demand is going to rise or fall. Sir, sales forecasting is something related with the company or organization point of view, if you see that. And demand forecasting is something the demands from the customer point of view. Okay, ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, like data science, artificial intelligence, how they can be useful in demand forecasting? Data science and you know, companies like sir, Amazon. These are the things that are needed to run a company. Actually, it is like a glue that can bind the whole computer system with the organization. सर इससे क्या होगा कि जैसे कोई डिपार्टमेंट है तो he can get knowledge of other department also of what is going there, and even departments can communicate with each other very efficiently. आपने दीपक IoT concept सुना है, Internet of Things? Yes sir. How that can be useful in material management? Sir, as far as I have just मैंने बस नाम सुना है, but I don't know about. अच्छा, आपने Industry 4.0 का नाम सुना है? Have you heard about Industry 4.0? No sir.
Sorry. Industry 4.0 and IoTs, no? No, sir. Any idea about blockchain technology? No, sir. अच्छा, परचेज ऑर्डर के बारे में कुछ बताओ दीपक। According to the little knowledge I have about this, purchase order is something related to the purchase capability of an organization. नहीं, परचेज ऑर्डर आपका रिलीज किया जाता है बिफोर यू परचेज समथिंग। So any idea about that? Any idea about the bidding process? Bidding Yes, sir. process. Yes, sir. Companies sometimes sir वो मतलब टेंडर्स निकालती हैं रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल्स और वो ओपन बिडिंग कराती हैं एंड सम और जिसकी सबसे लोएस्ट बिडिंग होती है दे गिव ऑर्डर टू दैट सप्लायर। क्या बोलते हैं उसको जो सबसे लोअर होती है? उसको बोलते हैं L1. लोएस्ट बिडर। That is called L1. सॉरी सर। L1. L1. ओके सर। What is L1? जो होता है सबसे कम प्राइस कोट कर रहा है, उसको ऑर्डर चला जाता है। What is the disadvantage of that? Sir, if we go only, if we consider only the monetary terms, we are going, sometimes we are going to sacrifice some other factors like quality, efficiency also. सर जरूरी नहीं है कि अगर जो सबसे कम बिडिंग करे he is going to provide you efficient service and quality उसकी अच्छी हो। Okay, Deepak, should I give you feedback? Yes, sir. How are you prepared? अभी इसमें Sir, I prepared everything. I watched every previous videos. And still stuck up? तो दीपक अभी कुछ और वीडियोस भी अपलोड हुए हैं, उनमें भी क्वेश्चंस पूछे थे मटेरियल मैनेजमेंट पे मैंने। अभी कुछ और पॉइंट्स तुम्हें बता रहा हूँ, उन पे वर्कआउट करो। एक तो ये नया जो कंसेप्ट है ना, रीसेंट इंडस्ट्री कंसेप्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे फाइट मारो। इंडस्ट्री 4.0 ये सारे आपको योरपीडिया के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। योरपीडिया में निटी बॉम्बे का फोल्डर होगा, उसमें डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, उसमें सब ये मिल जाएगा तुम्हें। इंडस्ट्री 4.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो डाटा साइंस, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का बेनिफिट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, ये देखना है आपने। क्योंकि वो जो प्रोफेसर्स, वो जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट वाले एग्जीक्यूटिव होंगे ना, वो इन चीजों का यूज कर रहे होंगे। एमआरपी, ईआरपी, मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में साइको सोशल चीजें भी आती हैं, साइको सोशल बिहेवियर। आपने मटेरियल को मिस हैंडल कर दिया, जोर से पटक के फेंक दिए तो नाराज नहीं होगा वो, और बंदे को पटक के फेंक दिया तो नाराज हो जाएगा। तो जो मटेरियल है उसमें साइको सोशल एस्पेक्ट नहीं होता, उसमें मोटिवेशनल थ्योरीज नहीं होती, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं आता। बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मटेरियल में थोड़ी होता है। उसकी कॉस्ट होती है एंड क्वालिटी होती है। ये स्टील है, इसकी इतनी कॉस्ट है, बढ़िया वाला स्टील है, ले लो। ये बंदा है, इतने रुपए में आएगा, बढ़िया वाला है, ले लो, ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, इन दोनों में ये डिफरेंस है। कौन सा आसान है करना?
सर मटेरियल मैनेजमेंट नहीं, ये बोल दिए तो नौकरी नहीं लगेगी। अगर आसान है तो दीपक तेरी क्या जरूरत है फिर? ये नहीं बोलना वहां पे, वो बोलना सर दोनों में अपने अपने चैलेंज हैं। यही तो सिखा रहा हूँ तब से यार, सीधी बात नहीं बोलनी दीपक, सीधी बात बोल दी तो नौकरी नहीं लगेगी यार। बोलना सर दोनों में अपना अपना चैलेंज है। ह्यूमन रिसोर्स में चैलेंज ये है कि तुम्हें बहुत सी टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, सोशल। मटेरियल में ये है कि तुम्हें कंपैरिजन करना पड़ेगा, मटेरियल बोलता नहीं है, ये उसकी ट्रबल है। मटेरियल थोड़ी बोलेगा मेरी क्वालिटी ये है, राइट? यस सर क्वालिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब मैं तेरे को इंटरव्यू लेके 5 मिनट में बता दूंगा भाई तू कैसा आदमी है, दूसरा अच्छा है कि तुम अच्छे हो, लेकिन मटेरियल बोलता नहीं है। यही उसके अंदर एक ट्रबल भी है, मटेरियल बोलेगा नहीं, उसके अंदर जो फॉल्ट होगा, डिफेक्ट होगा, उसका पता कैसे लगाओगे? टेस्टिंग करोगे। और एज मटेरियल मैनेजर आपके लिए बड़ी ट्रबल वाली बात है। आपके पास बंदे कम हो गए तो आप एक्स्ट्रा बंदे को बोल सकते हैं यार दीपक आज एक्स्ट्रा टाइम काम कर ले। मटेरियल खत्म हो गया, क्या करोगे? तो हर एक की अपना चैलेंज है। मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस, कौन सा करना आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है, दोनों में अपने अपने चैलेंज है सर। परचेज ऑर्डर, रीऑर्डर पॉइंट, लीड टाइम, ये आपका इन्वेंट्री से और फोरकास्टिंग से जुड़ी हुई चीज है। डिमांड फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग सेम ही चीज है। ऐसे फट्टे मार रहे थे तुम, जब पता ना हो तो फट्टे नहीं मार रहे दीपक। वो पता नहीं क्या क्या बोलना स्टार्ट कर दिए तुमने और मैं मजे ले रहा था फिर। उनको मजे नहीं दिलवाने अपने, फट्टे नहीं मारने। जहां नहीं पता बोलो सर सॉरी सर, नाम तो एक ही जैसा लग रहा है, नो आइडिया। ऑनेस्टली बोल दो, नहीं तो वो खींचते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे, उन्होंने भी टाइम ही पास करना है वहां बैठ के। तो ये सारे पॉइंट्स इनके ऊपर वर्कआउट कर लो यार जो मैंने बताया, और बाकी पॉइंट्स भी। और निटी बॉम्बे की साइट पे बहुत से, निटी बॉम्बे वाले में मेरे ख्याल से मैंने काफी मटेरियल ऐसा डाला है उसमें जो आपका रेलिवेंट मटेरियल है, उसको स्किम थ्रू करो, योर पीडीएफ पे काफी पड़ा हुआ है। तो मैं वही बच्चों को बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा एचआर लगाओ, मेरे जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो वो तैयारी अच्छी हो जाएगी, मॉक लगा के ही तैयारी होगी यार। और जो सर एक बार पूछा गया उसको क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, यस सर नेट पे जाओ ढूंढो। कोई सर प्रॉब्लम? ऐसा था कि आज मैं आने से पहले सारे वीडियोस देखा जो आपने कौशिक के लिए थे और जितने सारे बंदों के लिए थे मैंने देखा था। बट सर आपने बॉल ऐसे फेंक दी कि आई वाज लाइक बोल्ड बोल्ड बोल्ड। यही तो प्रैक्टिस है, मेरे को पता है ना तुम क्या पढ़ के आए हो। सो यही तो तैयारी करनी है इसमें दीपक, यही प्रिपरेशन करनी है हमें। और इंटरव्यूअर भी ऐसा ही करता है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, वो ये करता है कि अब मैं पूछता हूँ देखता हूँ ये क्या बोल रहा है, और ये प्रैक्टिस से आती चीज। इसीलिए देयर इज अ लॉजिक एंड रेलिवेंस ऑफ प्रैक्टिस। सो एक्वायरिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसिंग, दिस शुड गो हैंड इन हैंड। द स्टेज विल नेवर कम, मैं तेरे को एक बुक दे देता हूँ, मैं उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा और तू पूरा साल पढ़ता रहे, फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। नॉलेज नॉलेज एक पार्ट है, नो डाउट नॉलेज पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हो क्या रहा है, जब से मैंने मटेरियल मैनेजमेंट का मटेरियल दिया है, जनता उसको पढ़ने में लगी हुई है। उनको ये नहीं पता कि इसको पढ़ के कुछ नहीं होगा, ये तो रेफरेंस है यार, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे, तुम 10-20 मॉक लगाओगे, सुनोगे, दोबारा करोगे, दोबारा सुनोगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि नहीं नहीं जो मेरे को नहीं पता उसका आंसर नहीं देना, और ऐसे आंसर देना। और वही चीज है मेन इंपॉर्टेंट, वो चीज है। और एचआर तो स्पेसिफिकली वो है, एचआर में वो आपको पता लगाने की ट्राई करता है, उसको नॉलेज से लेना देना नहीं होता कुछ, मैं वो कुछ और चेक कर रहा होता है क्वेश्चन पूछ के। आपको क्या लगता है मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हें इनकी डेफिनेशन आ जाए? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हारी ऑनेस्टी क्या है, ब्लफ तो नहीं मारते हो, अगर कोई चीज नहीं आती तो रिएक्ट कैसे करते हो, जो आती है उसमें कैसे बताते हो। थ्रू दैट आई वांट टू चेक यू एज अ पर्सन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये तो मैं वैसे भी तुम्हें ट्रेनिंग में सिखा दूंगा सारी। आप मेरे पास मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आ जाओ अगर, तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में एनएमडीसी में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें 1 हफ्ते में सिखा दूंगा सारी चीज, और तुम पढ़ भी लोगे, वही तो करते हैं इंजीनियरिंग में हम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेक इज नॉट योर नॉलेज, आई एम ट्राइंग टू चेक यू एज अ पर्सन थ्रू आस्किंग क्वेश्चन। अगर डायरेक्टली मैं पूछूंगा दीपक फट्टे तो नहीं मारते हो, झूठ तो नहीं बोलते, बर्फ तो नहीं मारते हो, नहीं नहीं सर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट फेलो, तो तुम ऐसा बोलोगे। पर जब मैं क्वेश्चन के थ्रू पूछूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि नहीं इसको पता नहीं है फिर भी फट्टे मार रहा है, तो ये चीज चेक करता है वो।
एंड यू आर टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर वे। और उसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आड़ा टेढ़ा जैसा मर्जी बॉल आ जाए, गुगली फेंक दें, कि बाउंसर फेंक दें, कि कैसा फेंक दें, टीचर अलग तरीके के क्वेश्चन फेंक दे, तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो? यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, राइट और नॉट? Yes, sir. एक चीज समझ लो कि एज अ स्टूडेंट, एज आपने तैयारी, जितना तुम इस चीज को फेस करोगे, टेस्टिंग फेस करोगे, तुम्हारी तैयारी होगी। एंड एज अ टीचर, मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा, जितना मैं तुम्हें टीच करूंगा, जितना इंटरेक्टिव होगा, मैं भी एक अच्छा टीचर बनूंगा। अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं, आई लूज माई टीचिंग स्किल्स, आई लूज माई नॉलेज ऑल्सो। नॉलेज कम्स थ्रू दिस ओनली। बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि क्वेश्चन पूछते पूछते ही नई चीज कंसेप्ट समझ आता है, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, विच वन इज बेटर, विच वन इज नॉट बेटर, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। यू एंटर इट इन गूगल कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, विच वन इज डिफिकल्ट, you will never get the answer to this. This only comes with experience, this only comes with practice, these things. So that is what we have to acquire actually. तो वो चीज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो Yes, फाइन, sir. वेयर इज योर इंटरव्यू? Sir, 18. ना टाइम ज्यादा ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लगा दो सारा मटेरियल, योर पीडीएफ बहुत मटेरियल पड़ा है, उसको गो थ्रू करो एक बार, राइट? Yes, sir. Sir, वो नीति बॉम्बे folder. निटी बॉम्बे का फोल्डर पड़ा होगा, मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर ये सब चीज है, इन्वेंट्री, मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके अंदर सब पड़ा हुआ है, आईओटी, ये सारे के सारा टेक्नोलॉजी सब है। उस फोल्डर में जाओ, डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ, उसको लो और उसकी तैयारी करो, राइट? Okay, sir.